بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قمقام چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے روحانیت، روحانی مسائل، رزق کے مسائل اور برکت حاصل کرنے کا طریقہ۔ تو دوستو، آج کے دور میں نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر آدمی دوڑ لگی ہوئی ہے، رزق کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے اور وہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے اور وہ بہتر رحم کرنے والا ہے، لیکن دنیا رزق مشیت کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں ہم زیادہ سے زیادہ برکتیں سمیٹ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ رزق کی فراوانی اللہ تعالیٰ سے حاصل کر سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی برکتوں سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے ہمارے ذکر سے منہ پھیرا، جس نے ہمارے ذکر سے روگردانی کی، جس نے میرے ذکر سے، میری یاد سے اعراض کیا، منہ پھیرا، روگردانی کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی معیشت تنگ کر دوں گا۔ اب معیشت نظام زندگی ہے، آپ کتنا کچھ کر لیں، کتنا پیسہ کما لیں، کتنی بھاگ دوڑ کر لیں، آپ کی زندگی میں تنگی باقی رہے گی اگر آپ اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ کو یاد کیسے کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ ذکر کے متعلق سوال کرو اگر تم اس کے بارے میں نہیں جانتے، تو جاننے والوں سے سوال کرو۔ تو اہل علم سے پوچھیں کہ اللہ کو کیسے یاد کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کیسے یاد کیا جاتا ہے۔ اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میری طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اب وسیلہ، بہت سے وسیلے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، تو اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ جس طرح نماز وسیلہ ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کی یاد وسیلہ ہے، اس طرح کوئی راہبر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ ہے۔ کوئی راہبر، کوئی اللہ کا دوست، کوئی اللہ کا بندہ تلاش کریں، کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا تلاش کریں۔ اور بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ پنجابی میں کہ اٹھ فریدا ستیا تے میلہ ویکھن جا، جے کوئی مل جے بخشیا تے تم ہی بخشیا جا۔ اگر آپ کسی ایسے بندے کو تلاش کر لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اسے یاد کا طریقہ ہے، تو اس سے سیکھیں۔ نیکوں کے پاس بیٹھیں گے تو نیک ہو جائیں گے، بدوں کے پاس بیٹھیں گے تو بد ہو جائیں گے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ظاہری وجود کے ساتھ ساتھ ایک روحانی وجود بھی بنایا ہے۔ انسان کے وجود کے اندر لطائف عشرہ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، جن میں 5 جو ہیں لطائف وہ دنیاوی ہوتے ہیں، عالم حلق کے ہوتے ہیں، اور 5 عالم امر کے ہوتے ہیں۔ ایسے کہہ لیں کہ 5 ظاہر کے ہیں اور 5 باطن کے ہیں۔ جو باطن کے اللہ تعالیٰ نے لطائف انسان کے وجود کے اندر رکھے ہیں، اگر وہ کام کرنے لگ جائیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نور رکھا ہے، جو لطائف باطن کے ہیں، اگر ہمارے وہ کام کرنے لگ جائیں، ان کے اندر جو نور رکھا ہے وہ ہمارے وجود کے اندر سے باہر آنے لگ جائے، تو ہماری زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ جیسے کہ لطیفہ قلب ہے، اگر لطیفہ قلب، کیونکہ یہ اصل تو اس کی جڑ عرش کے نیچے ہے، تو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ آپ کے سینے میں رکھ دیا ہے۔ اگر آپ کا قلب ذاکر ہو جاتا ہے، آپ دل سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے آسان طریقے سے یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ بندوں میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں فرشتوں میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے، تو میرا ذکر کر، میں تیرے چرچے کرا دوں گا، تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ تو جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، پھر لوگ اس کا ذکر کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، 850 سال 900 سال ہو گئے ہیں، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اللہ کو یاد کیا۔ آج اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کے اندر نسل در نسل محبت ڈالی ہے، لوگ ان کا ذکر کرتے ہیں۔ بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، تو آج لوگ بابا فرید الدین، بابا فرید کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عوام سے ان کے جو ہے نا وہ چرچے کرا رہا ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ کی معیشت تنگ ہے، حالات کی تنگی ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي
फ़इन्ना लहू मईशतन दनका, जो मेरे ज़िक्र से मुंह फेर लेगा मैं उसकी माशियत तंग कर दूंगा। तो अल्लाह की तरफ लौट आएँ, अल्लाह को याद करें, दिल से याद करें, दिल से याद मेडिटेशन करें, बिल्कुल पुरसकून जगह पे बैठ के, तन्हाई में बैठ के अल्लाह को याद करें, दिल से याद करें, गौर व फिक्र करें, अल्लाह की बनाई हुई कायनात पे, उसकी आफरीनश पे गौर करें कि ये कायनात को अल्लाह ताला ने बेवजह पैदा नहीं किया। तो अल्लाह ताला की तरफ ध्यान लगाएं, तवज्जो करें, दिल से अल्लाह को याद करें। तो इंसान के वजूद के अंदर जो अल्लाह ने पॉइंट रखे हैं, जैसे दिल है, रूह है, सिर है, खफ़ी है, अखफ़ा है, तो ये सारे जो पॉइंट हैं इनके मुख्तलिफ नूर हैं, मुख्तलिफ रंग हैं। अब तो साइंसदानों ने ना कैमरे ईजाद किए हैं, क्रिलियन कैमरा के नाम से कैमरे ईजाद किए हैं। कोई इंसान की जब वो पिक्चर खींचते हैं तो इंसान के साथ साथ उसके वजूद से निकलने वाले रंगों की भी पिक्चर खींच लेते हैं। तो बाज़ लोगों के अंदर से कुछ रंग मिसिंग होते हैं, जब वो नहीं आ रहे होते तो उनके मुतलका मामलात में ख़राबी होती है। जैसे किसी इंसान के अंदर से लतीफ़ा कल्ब का रंग जो कि जर्द है, गोल्डन है, वो अगर बाहर ना आ रहा हो तो इंसान को लाजमी तौर पर माली मामलात की तंगी होगी। तो उनकी भी अभी ये तहकीक है कि जो लोग माशी तौर पे कमज़ोर होता है या जिसके माशी मामला ठीक नहीं होते तो उसके अंदर से ये फनास का रंग मिसिंग होता है। तो कुरान में भी अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जो मुझे याद नहीं करता उसकी मशीयत, उसका रिज़्क़ तंग कर दिया जाता है। तो अगर आप अल्लाह को याद करेंगे तो आपके अंदर से ये रंग बाहर निकलेगा और आपके इर्द गिर्द एक हाला बनाएगा, आपके इर्द गिर्द एक रूहानी जिस्म बनाएगा। तो उसकी बरकत से, अल्लाह ताला के नाम की बरकत से आपको माली फ़ायदे भी हासिल होंगे और इत्मीनान क़ल्ब भी और सुकून भी हासिल होगा। और आखिरत में तो इसका अजर बड़ा अजीम है, क्योंकि जो दिल का तल्लक है ये अल्लाह ताला के साथ है, आलम अमर के साथ है, रूह का तल्लक आलम अमर के साथ है। जब दिल और रूह से आप अल्लाह को याद करते हैं तो अल्लाह ताला के साथ आपकी जो कनेक्टिविटी है वो बहाल होती है, वो जो राब्ता है, वो जो कनेक्शन है जो टूटा हुआ है वो बहाल होता है। और जिसका कनेक्शन अल्लाह ताला से बहाल हो जाए, वो मालिक से बहाल हो जाए, अजीम ताकत से बहाल हो जाए, उसे क्या तंगी या क्या परेशानी होगी। तो इसी तरह इंसान के वजूद के इर्द गिर्द मुख्तलिफ रंगों का एक हाला होता है जो आम आँख से दिखाई नहीं दिया जाता। या तो रूहानी स्कॉलर और रूहानी लोग या रूहानी पेशवा उसे अपनी रूहानी कुव्वत से देख सकते हैं, या आज बड़े हाई फ्रीक्वेंसी कैमराज ईजाद हुए हैं, उसमें वो कलर्स नज़र भी आते हैं। आप चाहते हैं बरकतें हासिल करना तो अल्लाह को याद करें और बिलखसूस अल्लाह को दिल से याद करें। तो दिल से याद करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप बरकतें हासिल करेंगे। तो अल्लाह ताला ने इंसान का जो जिस्म मिसाली बनाया है ना, अगर ये पॉजिटिव होता है, ये रूहानियत की तरफ माइल होता है, तो ये नेक होता है, रूहानियत की तरफ माइल होता है, तो इसके अंदर नेकी की खूबू और नेकी करने की जो है सलाहियत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर ये नेगेटिव होता है तो इसके वो रंग और नूर वो इंसान के वजूद से बाहर नहीं आ रहे होते, तो इंसान की सोच नेगेटिव होती है, शैतान नहीं भी होता तो इंसान का अपना जो उसका एक औरा है, अपना जो एक जिस्म मिसाली है, जब उसके अंदर नेगेटिविटी छाई होती है, जब वो चैनल काम नहीं कर रहे होते जो इंसान के अंदर है, जब वो काम ही नहीं कर रहे तो उसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ से बाहर आएगी, तो इंसान के अंदर पॉजिटिविटी कहाँ से आएगी। तो वो रमज़ान में भी बरकतों से महरूम रह जाता है, क्योंकि वो बरकत वाले काम की तरफ आता ही नहीं है। तो आप अपने जिस्म मिसाली को कंप्लीट करें, ज़िक्र अज़कार करें, दिल से करें, दिल से अल्लाह को याद करें। अब मैं एक बात कर रहा हूँ कि इंसान के वजूद के अंदर 5वां लतीफ़ा है जो सीने के बिल्कुल वस्त में होता है, तो उसके नूर का जो रंग है ना वो ग्रीन है। और ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ मंसूब जो है वो लतीफ़ा है। अगर आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से फैज़ हासिल करना चाहते हैं और उनका फैज़ बराए रास्त आप हासिल करना चाहते हैं, तो दुरूद पाक का जो है ना वो विर्द बेतहाशा करें और 313 मरतबा कम अज़ कम पढ़ें। अगर आप रोज़ाना 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ते हैं तो कसरत दुरूद पाक में आ जाते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो बंदा मोहब्बत से दुरूद मेरे ऊपर भेजता है तो उसका दुरूद मैं खुद सुनता हूँ। तो आप दुरूद पाक पढ़ के जो है बराह रास्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से फैज़ हासिल कर सकते हैं। और ये फैज़ सिलसिला ब सिलसिला
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अक़दस से, सहाबा कराम के सीना अक़दस से होता हुआ, औलिया अल्लाह के सीना अक़दस से होता हुआ लोगों के सीनों में मुंतकिल होता है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि किसी रूहानी शख्स की तलाश करें, किसी पेशवा की तलाश करें जो आपके अंदर ये रूहानी फैज़ जो है उसको जारी करने के लिए आपको ज़िक्र का तरीका बताए, आपको गौर व खोज का तरीका बताए, मेडिटेशन का तरीका बताए, और आप उसके बताए हुए तरीके पे अल्लाह को याद करें तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो रूहानियत अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो किसी रूहानी शख्स के साथ जुड़ें, अपने किसी ऐसे बंदे के साथ रब्ता करें जो अल्लाह को याद करता हो। और हदीस नबवी भी है कि जो अल्लाह वाले होते हैं उनकी बड़ी एक पहचान है, वो पहचान ये है कि जब उनके पास बैठा जाए तो अल्लाह की याद आ जाए। आप तलाश करें, इंशाल्लाह जब आप तलाश करेंगे तो आपको कोई ना कोई ऐसा शख्स मिल जाएगा, उससे आप अपना इक्तसाब फैज़ करें। और याद रखें, इंसान की माशियत अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर दुरुस्त नहीं हो सकती। तो अल्लाह की मर्ज़ी क्या है कि अल्लाह ने इंसानों और जिन्नों को पैदा ही नहीं किया मगर अपनी इबादत के लिए। और अल्लाह ताला आपसे आपकी अपनी याद चाहता है कि मुझे कसरत से याद करो। अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे कसरत से याद करो। आप कसरत से अल्लाह को याद करें तो कसरत जो है ना वो ज़ुबान से मुश्किल बात है। आप दिल से अल्लाह को याद करेंगे तो कसरत होगी। जब आप दिल से अल्लाह को याद करेंगे तो आपका दिल तो जब तक धड़क रहा है, जिस लम्हा धड़क रहा है, हर वक्त वो अल्लाह की याद में मशगूल हो जाएगा। आपका जब कल्ब जारी हो जाएगा, आप सो रहे होंगे तो भी आपकी याद शुमार होगी। जब आप कसरत से याद करेंगे तो फिर आपको फ्यूज़ व बरक़ात जो है वो यहाँ भी हासिल होंगे और आखिरत में भी इंशाल्लाह बेड़ा पार है। हम कोशिश करेंगे कि रमज़ानुल मुबारक में गाहे बगाहे रूहानियत पे, बरकत पे, रूहानी अमूर पे, जिसमें मिसाली पे, ये जिसमें मिसाली को इंग्लिश में औरा भी कहते हैं, ये इंसान के इर्द गिर्द एक अल्लाह ने प्रोटेक्शन शील्ड बनाई हुई है। जिस इंसान का औरा जिसमें मिसाली कंप्लीट होता है वो एक कामयाब इंसान होता है, दुनिया उससे मोहब्बत करती है, उसको किसी किस्म की परेशानी नहीं होती और वो परेशानियों में ऐसे होता है जैसे उसे कोई परेशानी ना हो। अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमाते हैं और परेशानियों में भी वो बंदा सब्र करता है और सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है, अल्लाह उसके साथ होता है। और इंसान को पता भी नहीं होता कि परेशानी कब आई और गुजर गई है। लेकिन जिस इंसान का औरा कंप्लीट नहीं होता, जिसमें मिसाली कंप्लीट नहीं होता, वो शख्स जो है वो छोटी सी परेशानी भी उसे पहाड़ लगती है। तो अपना जिसमें मिसाली औरा इसे कंप्लीट करने के लिए अल्लाह को याद करें और अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करें। उसकी तरफ जो वसीले हैं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया है, नमाज है, रोज़ा है, सदका है, खैरात है, अल्लाह के नेक बंदे हैं, अंबिया कराम हैं, कुरान मजीद है, ये मुख्तलिफ वसीले हैं। तो सबसे मेरे नज़दीक जो सबसे बेहतरीन वसीला है वो मुर्शद बरहक है, जो आपको अल्लाह ताला का रास्ता बताता है, जो आपको हकीकी मानों में जो रूहानियत और फैज़ जो है वो आपके अंदर से किस तरह जारी होता है। हम जो है ना अपने अंदर जो बेचैनी है उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। इंसान को अल्लाह ताला ने ना मेडिटेटर हालत में पैदा किया है, रूहानी हालत में पैदा किया है। एक बच्चा पैदा होता है ना तो उसके अंदर रूहानियत होती है, वो मेडिटेटर होता है, उसके अंदर दुख नहीं होते, गम नहीं होते। और अगर उसको कोई बीमारी, कोई दुख या कोई तकलीफ़ पहुंचती है ना तो वह नाशुक्री नहीं करता। तो बच्चे की तरह जो हालत होती है ना ये हमारे अंदर बचपन में होती है, लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारे अंदर गम, मायूसी, हसद और बहुत सारी बातें जो है वो हम बाहर से अंदर दाखिल कर लेते हैं। असल में जो हम तलाश कर रहे होते हैं बाहर वो हमारे अंदर होता है। हमने दरअसल अपने अंदर मज़ीद एक ऐसे खौल, ऐसी चीज़ें, अना का हौल है, गुस्से का है, गम का है, परेशानी का है, वो अपने ऊपर उसको तारी कर लिया होता है। अगर हम उस जोन से बाहर निकलें, उससे बाहर निकलें तो अंदर से हमारे अंदर जो अल्लाह पाक ने कुव्वत रखी है वो अंदर से बाहर आए तो हमारी ज़िंदगी बदली जा सकती है। तो नई वीडियो तक के लिए डॉक्टर अबू कुमकाम हाँ जंजुआ को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।